दौरान कैलिफोर्निया के बैकर्सफील्ड नामक शहर में घटी। हुआ ये कि एक कार सवार मोहतरमा को किसी घर के बाहर पड़ा फ्लावर पॉट बहुत पसंद आया, जिसे देखकर उसने इसे चोरी करके अपने साथ ले जाने का एक कार सवार मोहतरमा को किसी घर के बाहर पड़ा फ्लावर पॉट बहुत पसंद आया, जिसे देखकर उसने इसे चोरी करके अपने साथ ले जाने का Hello students, welcome to our live APS classes, and this is our foundation course especially for the students from 9th to 12th. And in our today's live lecture we will discuss from the biology part, and the name of the chapter is sexual reproduction in flowering plants. And regarding this chapter, important 15 questions are to be discussed with the students. So first of all, good evening to all the students who joined with us as well as our live APS classes. तो मैं देखना चाहूँगी कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंश, ईशांत, मुस्कान, अक्षिता, सेजल, दीपिका, कृतिका, अकृत, वंश ठाकुर, आरव. So good evening to all the students. तो बेटे sexual reproduction in flowering plants. तो reproduction means the ability to produce young ones. Young ones को produce करने की ability जो होती है, that process is known as reproduction. And further continue the species from generation to generation. That process is known as the reproduction. And especially there are two types of the reproduction.
sexual reproduction and asexual reproduction. In case of asexual reproduction, only single parent is involved, whereas in case of sexual reproduction, two parents are involved. That means there is the fusion of the two gametes, and that process is known as sexual reproduction. So today's our chapter is sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction in flowering plants is also an important concept or important topic regarding the reproduction in flowering plants. So all the flowering plants show sexual reproduction. जितने भी flowering plants होते हैं वो सारे sexual reproduction show करते हैं. After that there is the formation of the seeds and the fruits. Seeds and fruits. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं दे शोज द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो सारे के सारे क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड आफ्टर दैट व्हेन दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड fruits. So this is the brief introduction regarding the chapter that is the sexual reproduction in flowering plants. तो आज जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. और रिमेंबर वन थिंग कि सभी स्टूडेंट्स की जो है वो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आंसर्स देने में. तो अब प्रशांत बेटा भी जुड़ गया है, मुद्दित, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं. सो गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ज़रूर करें. और योर सब्सक्रिप्शन टारगेट इज नियर अबाउट 380. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. In over 60% of angiosperms, pollen grains are shedded. Near about 60% of angiosperms जो हैं उसमें pollen grains जो होते हैं they are shedded. कौन से स्टेज पर वो शेड कर जाते हैं? जो pollen grains होते हैं angiosperms के वो कौन से स्टेज पर शेड कर जाएंगे? Your first is 2-celled stage, B 4-celled stage, C 3-celled stage and D is 1-celled stage. In over 60% of angiosperms, pollen grains are shedded. Pollen grains जो होंगे वो कौन सी स्टेज पर शेड करेंगे? Either 2-celled stage, 4-celled stage, 3-celled stage और 1-celled stage. आपके आंसर जो है विद इन बेटे सेकेंड्स में आने चाहिए because there is a boundation of time limit. वेरी गुड बेटे. ईशांत, मुस्कान ने सबसे पहले आंसर दे दिया है. वेल डन मुस्कान बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने और बिल्कुल सही आंसर दिया है. आर वंश, सेजल सभी ने आंसर दे दिया बेटे. तो नियर अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन सभी में क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे. एंड अल्टीमेटली स्टेज विल बी कम, जब ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी न किसी स्टेज पर जाकर शेड कर जाते हैं. तो वो कौन से स्टेज पर शेड करते हैं पॉलन ग्रेन्स? दे आर शेड एट, वो 4-cell स्टेज पर शेड नहीं करेंगे, गलत ऑप्शन है. 3-cell स्टेज में भी वो शेड नहीं करते हैं, 1-cell स्टेज में भी वो शेड नहीं करते हैं. सो ऑल दीज आर द रॉन्ग आंसर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. सो 60% of the angiosperms pollen grains are shed at 2-celled stage. 2-celled stage पर वो शेड कर जाते हैं. It is the question number 1 and right answer is 2-celled stage. That is your option A is the right answer for the question number 1. So आदित्य बेटा भी जुड़ गया है. Well done बेटा. Yes, अभय ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया बेटे.
60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर शेड एट द टू सेल्ड स्टेज. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 2, एंड योर क्वेश्चन नंबर 2 इज स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन जो है दैट इज प्रेजेंट इन, ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? एक्साइन. एक्साइन जो है दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. बी इंटाइन दैट इज द इंटरनल कवरिंग, जो अंदर की जो कवरिंग है दैट पार्ट इज नोन एज द इंटाइन, और जो बाहर की लेयर या बाहर का जो एरिया है दैट पार्ट इज नोन एज द एक्साइन. तो स्पोरोपोलिनिन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आइदर इन एक्साइन, इंटाइन, सी बोथ ए एंड बी. बोथ मीन्स बोथ एक्साइन में भी प्रेजेंट होंगे या फिर इंटाइन में भी प्रेजेंट होंगे. डी नन ऑफ द अबव, या तो फिर वो ना तो एक्साइन में प्रेजेंट होंगे ना ही इंटाइन में प्रेजेंट होंगे. So hurry beta, give me the answer regarding the question number 2, that is sporopollenin is present in. Sporopollenin किस में present होते हैं? बेटे स्पोरोपोलिनिन जो होते हैं वो एक्साइन और इंटाइन दोनों में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओनली वन ऑप्शन इज द राइट आंसर. या तो वो एक्साइन में प्रेजेंट होंगे या फिर इंटाइन में प्रेजेंट होंगे. नन ऑफ द अबव में भी वो नहीं आएंगे क्योंकि वो एक्साइन में भी नहीं और इंटाइन में भी नहीं प्रेजेंट है. ये भी गलत आंसर है. बट आउट ऑफ द टू, एक्साइन और इंटाइन दोनों में से वो किसी एक में प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन सी जो बताइए आपने कि बोथ एक्साइन और इंटाइन में प्रेजेंट है, दैट इज द रॉन्ग आंसर. इनमें से एक सही आंसर जिसमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आइदर एक्साइन और इंटाइन. तो जल्दी से बेटे कोशिश करें कि इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है. बिल्कुल सही आंसर दिया है मुस्कान, सेजल, प्रशांत, आदित्य. बेटे इंटाइन में प्रेजेंट नहीं होता है स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन इंटाइन. इंटाइन और एक्साइन में भी वो प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर इंटाइन और एक्साइन दोनों में ही नहीं पाया जाता है, वो भी गलत आंसर है. सो स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट इन एक्साइन, वो सिर्फ एक्साइन में प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. Next is your question number 3. A typical angiosperm embedded at maturity is 8 nucleate. जो एंजियोस्पर्म टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक है, एट मैच्योरिटी पर वो 8 न्यूक्लिएट होता है. एट मैच्योरिटी इट इज 8 न्यूक्लिएट. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक. तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक जो होता है वो मैच्योरिटी पर 8 न्यूक्लिएट है, बट उसे आगे वाली स्टेज में वो कितना सेल्ड होगा? ऑप्शन ए 5 सेल्ड, बी 8 सेल्ड, सी 7 सेल्ड, या डी नन ऑफ द अबव. मुद्दत बेटा, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सैक एट मैच्योरिटी पर अगर वो 8 न्यूक्लिएट है तो फर्दर अगले स्टेजेस पर वो 5 सेल्ड नहीं होगा. सो लेट यू ट्राई अगेन. दोबारा से आप कोशिश करें बेटे. इट इज द रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. 5 सेल्ड नहीं है बेटा, दोबारा से कोशिश करें. It is the wrong answer for the question number 3. A typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate, but in other stages वो 5 celled भी नहीं होगा, 8 celled भी नहीं होगा. None of the above भी wrong है, but a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate, but in other stages it is 7 celled. So option C is the right answer for the question number 3. Very good मुस्कान बेटा, शांत बिल्कुल सही आंसर है, 7 celled stage.
नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. सेजल बेटा नन ऑफ द अबव रॉन्ग आंसर है, क्योंकि टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉयस सैक जो है अगर वो मैच्योरिटी पर 8 न्यूक्लिएट है तो अदर फर्दर स्टेजेस पर वो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, वो किसी न किसी स्टेज में जो है वो पाया जाएगा, किसी न किसी सेल्ड स्टेज में वो जरूर प्रेजेंट होगा. दैट इज इट इज प्रेजेंट एट 7 सेल्ड स्टेज. यस अबे बेटा 7 सेल्ड बिल्कुल सही आंसर है. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. पोलर न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इन. जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो कहाँ सस्पेंड होते हैं? ऑप्शन ए इज एग, बी सेंट्रोसेल, सी सस्पेंसर एंड डी इज द न्यूसेलस. पोलर न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इन ऑप्शन ए एग, बी central cell, C suspensor and D is the nucellus. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटे, जल्दी से इसका आंसर दें. पोलर न्यूक्लियाई दे आर सस्पेंडेड एट, कहाँ सस्पेंड होंगे पोलर न्यूक्लियाई जो हैं? एग, सेंट्रल सेल, सस्पेंसर, न्यूसेलस. एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. तो बेटे पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एग में भी सस्पेंडेड नहीं होते हैं, सस्पेंसर में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, न्यूसेलस में भी सस्पेंड नहीं होते हैं. So these are the wrong options. What the right answer for the question number 4, that is polar nuclei are suspended in the central cells. Central cell. Central cell में वो सस्पेंड हो जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, बट वो एग में भी, सस्पेंशन में भी, न्यूसेलस में भी वो सस्पेंड नहीं होते हैं. तो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4, अक्षता बेटे न्यूसेलस में वो सस्पेंड नहीं होते हैं. वंश न्यूसेलस में सस्पेंड नहीं होंगे बेटा, सस्पेंसर में भी सस्पेंड नहीं होते हैं. प्रशांत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आरब ने, मुद्दत ने, दीपिका, वंश ठाकुर, सेजल बिल्कुल सही आंसर है बेटे. सो द पोलर न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इन द सेंट्रल सेल. Next is your question number 5. And your question number 5 is filiform apparatus is found in. Filiform apparatus जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? Option is antipodals, B synergids, C egg and D is a central cell. Filiform apparatus is found in antipodals, synergids, egg or central cell. It is your question number 5. तो बेटे फिलीफॉर्म अपरेटस जो हैं ये कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल्स में है, सिनर्जिड्स में है, एग में है या फिर सेंट्रल सेल में है? कोशिश कर रहे हैं बेटे, वेल डन, बहुत अच्छे, कोशिश करते रहिए बेटे. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कोशिश कर रहे हैं बेटे. तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का वंश बेटे एंटीपोडल्स में नहीं पाए जाते हैं. फिलीफॉर्म अपरेटस जो होते हैं आरे बेटे एंटीपोडल्स में नहीं पाए जाएंगे. Filiform apparatus they are not found in the antipodals. ईशांत मुस्कान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे. सेजल, प्रशांत बेटे Filiform apparatus they are not found in the antipodals, they are not found in the egg and as well as they are not found in the central cells. So Filiform apparatus they are found in the synergids. Synergids. So option B is the right answer for the question number 5. Synergids. Yes, वंश, प्रशांत, सेजल बिल्कुल सही आंसर है बेटे अब आपका. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एग एपरेटस। आपको ये बताना है कि एग एपरेटस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एग एपरेटस। कई बार आपने नाम सुना हुआ है एग एपरेटस, पर एग एपरेटस में होता क्या है। वेरी गुड बेटे, विद इन सेकेंड्स में, और यहां पर सारी चीजें क्लियर हैं। वंश बेटे इसके ऑप्शन नहीं दी गई है, आपको ये बताना है कि नोट लिखना है एग एपरेटस में क्या। एग एपरेटस बेटे क्या इंक्लूड करता है, एक तो उसमें वन एग सेल होता है, उसमें क्या होगा, वन एग सेल होगा, और दूसरा क्या है, दूसरे ऑप्शन है कि उसमें टू सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे। सो बेटे रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 6, एग एपरेटस क्या इंक्लूड करता है। एग एपरेटस में एक तो वन एग सेल प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो है देयर आर two synergids are present in the egg apparatus. So these are the two main important characteristics that are present on the egg apparatus, that is one egg cell, and the second is two synergids. Very good beta, synergids, two synergids. So this is the important questions, that is the egg apparatus. Next is your question number 7. Egg apparatus is situated towards. एग एपरेटस किसकी तरफ को सिचुएट करता है। ऑप्शन ए माइक्रोपाइलर एंड, बी आउटसाइड द न्यूक्लियस, सी लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रॉय सैक, डी चलेजल एंड। एग एपरेटस की जो पोजीशन है वो किसकी तरफ को वो सिचुएट करता है, आइदर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स द और आउटसाइड द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रॉय सैक, या फिर टुवर्ड्स द चलेजल एंड। It is your question number 7. Egg apparatus is situated towards. सो बेटे एग एपरेटस जो होते हैं दे आर सिचुएटेड टुवर्ड्स, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस भी सिचुएट नहीं करते हैं, आउटसाइड द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रॉय सैक की तरफ भी वो सिचुएट नहीं करते हैं, टुवर्ड्स द चलेजल एंड भी वो सिचुएट नहीं करते हैं, बट द एग एपरेटस इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो क्या करते हैं, सिचुएट करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। सेल बेटा टुवर्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस वो सिचुएट नहीं करते हैं। एग एपरेटस दे आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। मुद्दत बेटा गलत आंसर है। एग एपरेटस इज नॉट सिचुएटेड टुवर्ड्स or outside the nucellus, but egg apparatus is situated towards the micropilar end. कुछ बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है बेटे, तो उसको आप देख ले। इसकी सही आंसर जो है वो मैंने बता दिया है कि एग apparatus is situated towards the micropilar end. Next is your question number 8. Development of the egg gamete into embryo without fertilization. जो development होती है egg की या gamete की, किस फॉर्म में होती है, इनटू द एम्ब्रॉय। एग या गेमीट्स की जो डेवलपमेंट है इट कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रॉय विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एपोगैमी, बी सीडोगैमी, सी पार्थेनोकार्पी एंड डी इज द पार्थेनोजेनेसिस। एग या गेमीट का डेवलप होना एम्ब्रॉय में विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब भी किसी चीज की डेवलपमेंट होती है
into the embryo sac, that is with the help of the fertilization. But in case development of the egg and the gamete into the embryo without the fertilization, and at that time this process is known as either apogamy, pseudogamy, parthenocarpy or parthenogenesis. It is your question number 8. Yes बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर है. एग apparatus is situated towards a micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो सिचुएट करते हैं एग apparatus. But now our question number 8 is development of the egg or the gamete into the embryo without fertilization. बेटे यहाँ पर जो ईशांत मुस्कान बेटे, जो यहाँ पर हम वंश जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉट in case of the human beings. So development of the egg gamete into the embryo without fertilization, वो process क्या कहलाएगा? Parthenogenesis wrong answer है बेटे. It is not known as the parthenogenesis. So let it try again. क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है एग या गमीट की एम्ब्रॉय की फॉर्म है विदाउट द यूज ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बट दैट प्रोसेस इज नॉट नोन एज अ पार्थेनोजेनेसिस. इट इज ऑल्सो नॉट नोन एज अ स्यूडोगेमी. आदित्य बेटे आपने ये क्या लिखा है? एपोगेमी भी नहीं है बेटे. डेवलपमेंट जो एग की गेमीट, एग या गेमीट की जो डेवलपमेंट होगी एम्ब्रॉय में विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज नॉट नोन एज अ पार्थेनोजेनेसिस. स्यूडोगेमी, एपोगेमी वो नहीं कहलाएगी, बट दैट प्रोसेस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ द एग गेमीट इनटू द एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी. Parthenocarpy. So option C is the right answer. Option C is the right answer for the question number 8. Parthenocarpy. Akshita beta, apogamy is not that process where the development of the egg or the gamete that is into the embryo without द यूज ऑफ द फर्टिलाइजेशन. क्योंकि जब भी डेवलपमेंट होगी एग या गेमीट की एम्ब्रॉय में विदाउट फर्टिलाइजेशन, एट दैट टाइम दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. एंड योर क्वेश्चन नंबर 9 इज सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय. सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो किसके द्वारा बनता है? A. Antipodal cells, B. Egg apparatus, C. Synergids, and D is a two polar nuclei. Secondary nucleus is formed by. Secondary nucleus की जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हो रही है? Antipodal cells, egg apparatus, synergids, two polar nuclei. चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटे. लाइक्स आपके आते रहने चाहिए. सब्सक्रिप्शन टारगेट जो है दैट इज नियर अबाउट 380. सो लाइक द स्ट्रीम. सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय. वो एंटीपोडल सेल से भी फॉर्म नहीं होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग एपरेटस से भी फॉर्म नहीं होता है, सिनर्जिड से भी फॉर्म नहीं होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियस देयर इज no role that is played by the antipodal cells, egg apparatus as well as synergids, but secondary nucleus is formed by the two polar nuclei. So option D is the right answer for the question number 9.
Secondary nucleus is formed by the two polar nuclei. Two polar nuclei. Very good, beta. Abhay. Next is question number 10. Sporopollenin is present in. Sporopollenin किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बेटे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Sporopollenin is present in A. Exine, B. Entine, C. Both A and B, and D. None of the above. Sporopollenin is present in exine, entine, both A and B, and D. None of the above. D. None of the above. बिल्कुल सही आंसर है बेटे, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका. ईशांत, मुस्कान, प्रशांत, अक्षिता, आरब, दीपिका, अभय, तो सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा. सो स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट इन एक्साइन. Sporopollenin is present in exine. So option A is the right answer for the question number 10. Now shift to the question number 11. So आज का जो टारगेट हमारा क्वेश्चंस का 15 का टारगेट है और 11th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं बेटे. And your question number 11 is when the body or ovule, embryo sac, micropyle and funicle all lie in one vertical plane, the ovule is. When the body or ovule, embryo sac, micropyle and funicle all lie in one vertical plane, the ovule is. Option is entatropous, B. Orthotropous, C. Amphitropous, and D is Amphilotropous. Amphilotropous. When the body or the ovule, embryo sac, micropyle and funicle all lie in one vertical plane, the ovule is entatropous, B. Orthotropous, C. Amphitropous, and D is the Amphilotropous. बिल्कुल सही आंसर है वंश बेटा. वेरी गुड, वेल डन के बेटा. क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे आपने. बहुत अच्छे बेटे. तो और स्टूडेंट्स भी जल्दी से इसका आंसर दें. Sporopollen, when the body or the ovule, embryo sac, micropyle and funicle all lie in one vertical plane, the ovule is. ओव्यूल जो होगा बेटा वो एंटेट्रोपस भी नहीं होगा, रॉन्ग आंसर है. एम्फीट्रोपस भी नहीं होगा, इट इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन. एम्फिलोट्रोपस भी नहीं होगा, सो इट इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन. But the right answer for the question number 11 is when the body or the ovule, embryo sac, micropyle and funicle all lie in one vertical plane, the ovule is orthotropous. 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 वेरी गुड मुदत बेटा, अभय, आरब, सेजल, वंश, बिल्कुल सही आंसर है बेटे क्वेश्चन नंबर 11 का. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर क्वेश्चन नंबर 12 इज pollination through air is called pollination, the transfer of pollen from stigma, जो ट्रांसफर होता है पॉलन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन. बट द पॉलिनेशन थ्रू एयर इज कॉल्ड. ऑप्शन इज हाइड्रोफिली, बी एंटोमोफिली, सी एनिमोफिली, एंड डी इज द मायरोमिकोफिली.
हाइड्रो मीन्स बेटा प्रशांत, हाइड्रो मीन्स बेटा, हाइड्रो नेम अंडरस्टूड कर रहा है कि हाइड्रो मीन्स वाटर से रिलेटेड बात हो रही है, वाटर से रिलेटेड बात हो रही है तो वो हाइड्रो होगा। यहां पर बात हो रही है, वेरी गुड अक्षता बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि पॉलिनेशन जो एयर के थ्रू होगी, जो हाइड्रोफिली दैट इज रिलेटेड विद द वाटर नॉट विद द एयर। सो पॉलिनेशन थ्रू एयर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। रॉन्ग आंसर है बेटे, हाइड्रोफिली नहीं होगी पॉलिनेशन थ्रू एयर। एंटीमोफिली भी नहीं होगी, इट इज अगेन द रॉन्ग आंसर। मायरेमिकोफिली भी नहीं होगी, इट इज अगेन द रॉन्ग आंसर। But the right answer for the question number 12, pollination through air, is called anemophily. Anemophily. So option C is the right answer for the question number 12. Now shift to the question number 13. And your question number 13 is, filiform apparatus is found in, filiform apparatus किस में पाया जाता है? ऑप्शन इज एंटीपोडल्स, बी सेंट्रल सेल्स, सी सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड डी इज द सिनर्जिड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा माइंड पर जोर डालेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा और थोड़ा आपको रिमाइंड भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। फिलीफॉर्म apparatus is found in antipodals, central cells, secondary nucleus, either synergids. Is there any problem regarding these questions beta? Is there any problem regarding these questions? And these questions are from the biology part and the name of the chapter is sexual reproduction in flowering plants. सेकेंडरी न्यूक्लियस में नहीं है बेटे, मुद्दित, सेजल, प्रशांत बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अक्षता बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होंगे फिलीफॉर्म apparatus जो है। मुद्दत बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होंगे फिलीफॉर्म apparatus। वेरी गुड अक्षता बेटा, अक्षता बेटा ट्राई अगेन करो आप। फिलीफॉर्म apparatus, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। फिलीफॉर्म apparatus इज फाउंड इन, वेरी गुड बेटा, फिलीफॉर्म apparatus जो होते हैं वो एंटीपोडल्स में भी नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रल सेल्स में भी नहीं पाए जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में भी नहीं पाए जाते हैं, बट द फिलीफॉर्म apparatus इज फाउंड इन द सिनर्जिड्स। So option D is the right answer for the question number 13. So well done beta, अगर कोई issue नहीं है आपका, it is the great achievement by all the students. So now our second last question, and our second last question is question number 14, and your question number 14 is एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। जो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है एंड दैट एंट्री इज थ्रू माइक्रोपाइल, और वो एंट्री किसके थ्रू हो रही है? माइक्रोपाइल के, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पोरोगेमी, मिजोगेमी, पेलिनोलॉजी एंड डी इज द चेलेजोगेमी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगेमी, मिजोगेमी, पेलिनोलॉजी एंड चेलेजोगेमी। It is your question number 14. Entry of the pollen tube through micropyle. यहां भी बेटे दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको ये रिमाइंड रिकैप्चुलेट जरूर होगी आपको ये चीज कि जो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइल के थ्रू होती हुई वो क्या कहलाती है? पोरोगेमी, मिजोगेमी, पेलिनोलॉजी और चेलेजोगेमी।
मिजोगैमी नहीं है बेटे, मिजोगैमी इज द रॉन्ग आंसर. सो लेट्स यू ट्राई अगेन. एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल जो है बेटे वो मिजोगैमी भी नहीं कहलाएगी, पेलिनोलॉजी भी नहीं कहलाएगी, चेलेजोगैमी भी नहीं कहलाएगी, but that process is known as porogamy. Entry of pollen tube through micropyle is called porogamy. Porogamy. Palinology भी नहीं है अक्षता बेटा, that is porogamy. Porogamy is the right answer. Now our last question, that is question number 15. Study of pollen grains. Pollen grains की study क्या कहलाती है? Option A, emasculation, B, palynology, C, anemophily, and D is phycology. Phycology. Study of pollen grains. And that process is known as emasculation, palynology, anemophily, phycology. बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे, वंश बेटे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेल डन बेटा, के बेटा बहुत अच्छे. मुद्दत बेटा एमेसिकुलेशन नहीं कहलाएगी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगी. पॉलन ग्रेन्स की स्टडी, पॉलन ग्रेन्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? दीपिका बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की आपने ऑप्शन ए जो दिया मुद्दत बेटा वो बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपने ऑप्शन दिया पोरोगैमी, दैट इज द राइट आंसर मुद्दत बेटा. एंड रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 15, जो स्टडी है पॉलन ग्रेन्स की वो क्या कहलाती है? दैट प्रोसेस इज नोन एज पेलिनोलॉजी. और जिन बच्चों ने सही आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 15 का, दैट इज दीपिका, मुद्दत, सेजल, अक्षिता, ईशांत, मुस्कान, अभय. वेल डन बेटा ऑल द स्टूडेंट्स. Well done performance by all the students. So study of pollen grains is known as palynology. Palynology. So बच्चे ये 15 क्वेश्चंस का आज का हमारा टारगेट था, और ये क्वेश्चंस थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड द चैप्टर इज from the biology part, and this chapter is very important for all the classes from 9th to 12th, and this chapter is common for all the classes. तो ये जो थे वो आज हमारे 15 क्वेश्चंस थे. 15 क्वेश्चंस आज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिख लिया होगा. और टुमारो इज संडे बेटे, कल संडे है, तो टुमारो इज ऑफ रहेगा आपका. देयर इज नो लाइव क्लास, एंड अब हम जो मिलेंगे दोबारा दैट इज ऑन मंडे, इसी समय पर इसी टाइम पर नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ. और तब तक आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस आपको बैक डेट्स में करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप संडे के दिन जो है वो सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे. सो गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स, and thanks Vita.